दिख रहा है सबको? थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। सकृद्यदर्शितं रूपम् सकृत्य दर्शितं रूपम् स्क्रीन एतद् पे नहीं है तो कुछ कामायते अनघा एतत् कामायते अनगा मत्कामाशनकै साधु मत्कामाशनके साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। प्रभु जी शेर नहीं हुआ है। सकृद्यदर्शितं रूपम् एतत् कामायते अनघा मत्कामः शनकै साधु सर्वान् मुञ्चति हृच्छयान्। Sakrit, once only, yat, that, darshitam, shown, rupam, form, etad, this is, kamaya, or hankerings, te, your, anaga, O virtuous one, mat, my, kamaha, desire, shanakai, by increasing, sadhuhu, devotee, sarvan, all, munchati, gives away with shayan, material desires. O virtuous one, you have only once seen my person, and this is just to increase your desire for me. Because the more you hanker for me, the more you will be freed from all material desires. O virtuous one, you have only seen my person. You have only once seen my person. And this is just to increase your desire for me. Because the more you hanker for me, the more you will be freed from all material desires. किसको पढ़ना है? हाथ खड़ा करो। ये जो इंग्लिश ठीक से पढ़ पाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हिमानी को देते हैं चांस। यस हिमानी माता जी। Hare Krishna. A living being cannot be vacant of desire. He is not a dead stone. He must be working, thinking, feeling, and willing. But when he thinks, feels, and wills materially, he becomes entitled
and conversely, when he thinks, feels, and wills for the service of the Lord, he becomes gradually freed from all entanglement. The more a person is engaged in the transcendental loving service of the Lord, the more he acquires a material hankering for it. That is the transcendental nature of godly service. Material service has satiation, whereas spiritual service of the Lord has neither satiation nor end. One can go on increasing his hankerings for the loving transcendental service of the Lord, and yet he will not find satiation or intense service of the Lord. One can experience the presence of the Lord transcendently. Therefore, seeing the Lord means being engaged in his service because his service and his person are identical. The sincere devotee should go on with sincere service of the Lord. The Lord will give proper direction as to how and where it has to be done. There was no material desire in Narad, and yet, just to increase his intense desire for the Lord, he was so advised. Om Jnanatimirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurmilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnupadaya Krishna Prishnaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namini. Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvisheshaya Shunyavadi Pashat Deshatarine. Jayo Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sakritya darshitam rupam etat kamayate anagha mat kama shanakai sadhu sarvan munchati hrit shayan. Oh virtuous one, you have only one seen my person, it is just to increase your desire for me. Because the more you hanker for me, the more you will be freed from all material desires. Hare Krishna. तो नारद जी को कृष्ण जी ने एक झलक दी थी. कल भी हम उस चीज़ को समझने का कोशिश कर रहे थे. प्रभुपाद जी भगवान की झलक को और भगवान की सेवा को इधर सेम वर्णन कर रहे हैं. देखिए, भगवान की सेवा भगवान की अनुमति के बिना नहीं हो सकती. एक बारी एक डिवोटी थे, उनका नाम है पुंडरीक विद्यानिधि. वो जगन्नाथपुरी गए. तो जब वो मंदिर में गए तो उन्होंने देखा कि जगन्नाथ को जो टोपी पहनाते हैं कॉटन के कपड़े से बनाया हुआ था, वो अभी धोया नहीं है. कॉटन का कपड़ा जब शुरू में आता है स्टार्च होता है उसमें, आपने देखा तो लोग धोती शुरू में पहनते हैं, ऐसे ऐसे खड़ा होता है. लेडीज़ का भी यही होता है, धोती आती है आपको निकालना पड़ता है स्टार्च. हम तो सोचते थे हमारे लिए होता है. हम तो ये धोती का कपड़ा जब आता है, एनीवे जूट का अलग है, कॉटन में स्टार्च होता है. अगर आप उसको बिना धोए के पहनोगे पहले में, एक तो पूरा ट्रांसपेरेंट रहेगा और ऐसा खड़ा रहता है. धो के पहनना था, ठीक है. तो उसने देखा कि ये लोग ऐसे मूर्ख लोग हैं. उसने सोचा ये जो पगड़ी को धो के क्यों नहीं पहनाया, अच्छा आता है, ऐसे खड़ा था. तो ऐसा सोच के जाके, क्या बेवकूफ़ लोग ये लोग, सेवा करते हैं, सेवा करना भी नहीं आता. ऐसा उसने मन में अपराध सोचा, जाके सो गया. तो जब सोया, क्योंकि वो ऑर्डनरी आदमी नहीं है, एक्चुअली वो कृष्ण का नित्य दास है. ठीक है, इनका सबका एनालिसिस है. पुंडरीक विद्यानिधि कौन थे,
कृष्ण की लीला में। तो फिर जब वो सोए, रात को उनके सपने में कृष्ण बलराम आए, जगन्नाथ जी और बलदेव जी आए, सुभद्रा, और उसकी पिटाई शुरू हो गई। बहुत थप्पड़ मारे उसको, इतने थप्पड़ मारे कि गाल लाल हो गए, बिस्तर से गिर गया वो। तो बदमाश हमारे भक्तों के ऐसे गलत गलत सोचता है ऐसा। तो प्रभुपाद जैसे टिप्पणी देते हैं, देखो जो भी है उनको जगन्नाथ जी ने अपनी सेवा दी है, इसलिए जब भी धाम में जाते हैं हम लोग, पांडा का जगन्नाथ जी में या वृंदावन में जो मंदिर में सेवा कर रहे हैं, कभी उनका गलत सोचना नहीं चाहिए। इसलिए बोलते हैं कि धाम में 3 दिन से ज़्यादा नहीं रहने का। क्यों? क्योंकि 3 दिन बाद तो ये देखो देखो कैसे करते गड़बड़। हम लोग देखो जो भी है भगवान ने उसको सेवा दी, अब तुम्हारा काम नहीं उस पर टिप्पणी लगाने का, समझ रहे? तो जो मंदिर में भक्त भगवान का सेवा कर रहे हैं, घमंड नहीं करना, लेकिन एक्चुअली राधा गोविंद का अनुमति है, इसलिए छू पा रहे हो, इसलिए सेवा कर पा रहे हो, है ना? आप समझ रहे हैं? भगवान का पर्सनल परमिशन होता है, हम लोग तो खाली निमित्त मात्र हैं। जैसे दुनिया में कोई कुछ भी होता है, इवेंट होता है, हम जानते हैं भगवान की अनुमति के बिना कुछ नहीं हो सकता। भक्त चल रहा है रोड में, जोर से पीछे से एक अपने बाइक ठोक देगी, है ना? अंदर से तो बोलते हैं क्या तेरे को गाड़ी चलाना आता नहीं, लेकिन मन में कुछ कर्म हो गया, भगवान की अनुमति थी, ये भी हो गया, है ना? हर क्षण दुनिया में जो भी हो रहा है भगवान की अनुमति के बिना नहीं हो रहा है। तो भगवान की अनुमति के बिना कौन का सेवा कैसे कर सकता? कोई नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। एक चीज। दूसरा चीज, बिना आध्यात्मिक सुख के आप कितने दिन सेवा करोगे? सेवा रुक जाएगी। अगर आपको टेस्ट नहीं है, अगर आपको भाव नहीं है, आप सेवा ज़्यादा दिन नहीं कर पाओगे। इसमें भी एक एग्जाम्पल है। एक बारी एक पुजारी मंदिर में पूजा कर रहा था, पूरी जिंदगी से 20 साल शुरू किया, 80 साल हो गया अभी, बहुत मुश्किल। और भगवान को बोल रहा था कि तुमने नहीं, हाँ मतलब पूरी जिंदगी पूजा की। एक दिन भगवान के जहाँ सामने खड़ा हुआ, बोला अब मैं सेवा छोड़ के जा रहा हूँ। क्यों? तुमने 60 साल मैंने तुम्हें आरती करी, तुम्हें भोग लगाए, एक बारी भी तुमने प्रेम से मेरे को एक शब्द नहीं बोला, है ना? तो मेरी तुम्हारी सेवा नहीं करनी, मेरे को ऐसा आरती प्लेट ऐसा रखना, नहीं करनी तुम्हारी सेवा, मैं जाता हूँ। तो इमीडिएटली श्री राधा गोविंद की इमीडिएटली उसके पीठ में भगवान थपथपाए। तो गुस्से से बोला अब क्यों थपथपा रहे हो? बोला अभी तक तो तुम तो मेरे को ऐसे इग्नोर कर रहे थे, खड़े थे ऐसे। एक बारी श्री राधा गोविंद की जय, श्री गौर निताय की, चलो प्रभुपाद, ठीक है। तो अब क्यों तुम पीठ में थपथपा रहे हो? अभी तक तो तुमने मतलब ऐसे ही खड़े थे बस, जैसे पत्थर ही हो। तो भगवान ने उत्तर दिया, अभी तक तुम पूजा भी पत्थर की तरह कर रहे थे, पहली बार तुमने पर्सनली मेरे को कुछ बोला, करेक्ट? तो हम भी जैसे डील करेंगे भगवान के अर्थ, उसके बारे में वो करना है, आज ये करना है, उसको बात करना है, तो भगवान भी ठीक है कर, करेक्ट, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो भगवान की सेवा में एक तो क्या होता है, हमेशा हृदय में इच्छा होना चाहिए, क्योंकि आप उसको वैल्यू नहीं करेंगे तो चले जाती है चीज़, है ना? आप कभी वैल्यू करेंगे, मैं भी कब आरती करूँगा भगवान का, मैं कब भगवान को भोग लगाऊंगा, मैं कब भगवान को नहलाऊंगा। पर्सनल सेवा है ना, है ना? और जब गुरु हैं हमारे, कब उनको मैं पैर छूऊंगा, उनको कब एक बारी कुछ पर्सनल कोई सेवा करूँगा, उनके लिए खाना बनाऊंगा, ये इच्छा होना चाहिए ना। इच्छा होगा तो आप उसको वैल्यू करोगे, है ना? और जो पर्सनल सेवा कर रहा है, क्या भाग्य है इसके, ऐसा सोचोगे ना। जो वैल्यू नहीं करोगे तो हाँ क्या कपड़ा बना दिए, क्या इनको ड्रेस करना नहीं आता, क्या ऐसा सोचोगे, अपराध करोगे। तो भगवान के अनुमति के बिना कोई भगवान की सेवा नहीं कर सकता, हमेशा ये क्लियर होने का। इसलिए टेम्पल हमेशा भगवान की इंटरनल एनर्जी से चलता है। किससे चलता है? इंटरनल एनर्जी से चलता है, एक्सटर्नल एनर्जी से नहीं। हम तो एक्सटर्नल एनर्जी में हैं, लेकिन भगवान इंटरनल एनर्जी से अपनी सेवा कराते हैं, है ना? सेवक अगर भाव नहीं होगा तो सेवा कैसे करेगा?
और भाव के लिए भगवान की कृपा चाहिए, है ना। जैसे आपको हृदय में आनंद करता है, आप भगवान का अभिषेक करते हैं, ऐसा लगता है जैसे 16 माला करी, इतना सुख प्राप्त होता है, इतना खुशी होता है। अब जैसे अभी क्लास ले रहे हैं, ये भी सेवा है। अगर इस सेवा करने में आनंद नहीं होगा तो आप कैसे सेवा कल करोगे? नहीं कर पाओगे ना। कितने दिन करोगे नाटक? नहीं कर पाओगे, रुक जाएगा। ठीक है, तो कोई भी सेवा भगवान की है वो भगवान की अनुमति से होती है, और उसका जो आध्यात्मिक सुख है ना, वो बहुत ही कॉन्फिडेंशियल है। तो इसलिए हमेशा कोई कुछ भगवान की सेवा कर रहा है, उसको आदर करना चाहिए। कितना भाग्य है ना, क्योंकि भगवान की अनुमति है। तो भगवान की सेवा और भगवान के दर्शन में कोई फर्क नहीं है। अगर आपको भगवान की कोई सेवा, जैसे आप जाप कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जाप कर रहे हैं। जाप करना असंभव है, बिना टेस्ट के आप जप नहीं कर पाओगे। एक माला करोगे, अरे बहुत हो गया, छोड़ो, जाके सो जाओ। टेस्ट, जब तक टेस्ट नहीं आएगा, तो वो टेस्ट क्या है? वो आध्यात्मिक टेस्ट क्यों भगवान देंगे? उनका अनुमति से। तो अनुमति नहीं है, 16 माला नहीं करोगे, टेस्ट ही नहीं, थोड़ा है, बहुत हो गया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप किसी को ध्यान से देख लो 16 माला जप कर रहा है, कितना भाग्यवान। भगवान ने उसको वो सेवा दे दी। जप करना भी सेवा है ना, उसको सेवा दी, कितना भाग्यवान है। अगर आप ऐसा सोचोगे, ठीक है, और उस भक्त की सेवा करोगे, तो आपको भी वो टेस्ट मिल जाएगा। महत सेवा द्वार माहो विमुक्ते तमो द्वारम योषिताम संगी संग। महत भक्तों की सेवा करने से वैकुंठ के द्वार खुल जाते हैं, और तामसिक लोगों का संग करके नरक के द्वार खुल जाते हैं। हमारी इच्छा है किधर जाने, तो सैटिएशन। तो भगवान की सेवा में जो आनंद ले रहा है, वही तो अच्छे से जप कर सकता है। वही, कुछ लोग हैं हर दिन 2-2, 3-3 घंटा गीता पढ़ते हैं। अभी मेरे को एक वक्त बोला कि हम तो भाई 4 धाम में गए थे, मैं गंगोत्री में बैठ के पूरी गीता पढ़ी। अब देखो कितना विश्वास होगा, कोई ऐसा कर रहा है तो, है ना। नहीं विश्वास होगा, नहीं होगा, आराम है क्या? यार मेरे को कब इतना विश्वास होगा भगवान, मेरे को कब ऐसा टेस्ट मिलेगा कि मैं भी ऐसा करूँगा, है ना। तो भगवान की सेवा हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये सेवा भगवान की अनुमति के बिना नहीं करी जा सकती। नहीं कर सकते। भगवान की अनुमति के बहुत लोग हैं, बैठ के 2-2, 3-3 घंटे हर दिन भागवत पढ़ते। कितना भाग्य होगा कि उसको विश्वास और उसमें स्वाद है, ध्यान से भागवत पढ़ रहे हैं, है ना। कुछ लोग हैं 1 मिनट नहीं पढ़ पाते, ना तो विश्वास है ना टेस्ट है। न्यूज़पेपर दो तो 5 घंटे पढ़ लेते, और उसको एक भागवत दो, एक पे एक लाइन पढ़ने के आगे इंटरेस्ट नहीं, है ना। तो उसमें आपको जो भागवत डेली पढ़ो, उसका सेवा करो, उसके आशीर्वाद से आपको टेस्ट मिलेगा, है ना। शुश्रूषोषदानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्रा पुण्यशील निवेशना। भक्ति की शुरुआत होती है महत सेवा से। एक्चुअली हम इस चीज़ को कभी स्वीकार नहीं करते। हम बोलते हैं भक्त कैसे बने, हम सब ऐसा बोलते हैं। मेरा एक क्वेश्चन था और उसने एक पॉइंट बताया, मैंने बोला ठीक। हम दूसरे को क्रेडिट कभी नहीं देते, है ना। मेरा पॉइंट था, उसने क्लियर किया, मैं कन्विंस हो गया, मैं भक्त बना। ना तो जिस भक्त ने पॉइंट क्लियर भी किया उसको याद करते हैं, और मतलब मैं उसमें भी मैं कोई भक्त मैं बकरी की तरह मैं से नहीं बनता। भक्त बनता है महत सेवा से। आपने किसी तरह प्रभुपाद जी की सेवा करी, गलती से, जान के, अनजान से, और उससे क्या हुआ? उस सेवा की वजह से आपके हृदय में भगवान प्रसन्न होकर भक्ति उत्पन्न करते थे। मेरे कॉलेज में भी भक्त लोग आते थे, हम मतलब तरह साइंस स्पिरिचुअलिटी करके बड़े बड़े लॉजिक सुनाते थे। मैं सुनता था और मेरे को कुछ लगता था इसमें सच है, और हॉस्टल में जाके बोलता था, आज बहुत अच्छा पॉइंट समझा कि हम शरीर नहीं आत्मा है, बहुत क्या पॉइंट दिया था, और कॉन्शियसनेस ये सब। तो मेरे सारे दोस्त लड़ने लग जाते थे, सारे नास्तिक थे, सभी नास्तिक होते हैं आजकल, 99% लोग नास्तिक होते हैं।
लड़ने लगे, गलत है बिल्कुल, ये तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया है क्या, ऐसा रैंडम कयास, मेरे को बोलते रैंडम कयास है कुछ, उससे कुछ मतलब बेवकूफ़ी से कुछ एक्सप्लेनेशन देते थे और मेरे को कंफ्यूज कर देते थे। अगले साल तक मैं फिर सुनता था, फर्स्ट ईयर हो गया, सेकेंड ईयर, अपना खुद एग्जाम्पल बता रहा हूँ, थर्ड ईयर हो गया, भक्त नहीं बन पाया। चौथे ईयर में क्या हुआ था, एक डिवोटी आ रहे थे, पृथु प्रभु, देखो उनको बुला रहा हूँ मैं, इधर आएंगे, अभी उन्होंने क्लास लिया था कुछ टाइम, तो उन्होंने, मैं गया वहाँ पे, बोले हमको अरेंजमेंट करना है, मैंने वॉलेंट्री का उन्होंने वो डाला कि चीटी डाल दो, मैंने नाम डाला, मैं ही एक लड़का था, बाकी हमारे वो जनरली कॉलेज में बीटेक के लोग पूरे बिगड़े होते हैं, थोड़ी जो शांति होती है वो होती है पीएचडी या एमटेक लोग, वो थोड़े बुजुर्ग होते हैं, बीटेक मतलब बच्चे। तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने डब्बा खोला, एक ही चीटी थी, मेरा नाम था, मेरे को फ़ोन किया, वो लोग थोड़े डिवोटी थे, उन्होंने मेरे को बुलाया, वो लोग वृंदावन भी जाते थे, भक्तों को जानते थे, तो तुम सेवा कर, मैंने कहा हाँ हर साल क्लास अटेंड करता हूँ, आप लोगों ने पोस्टर लगाया, मैं सेवा के लिए, बोला तेरा ही नाम आया है पूरा बीटेक, मैंने कहा ठीक है, क्या सेवा है, बोले झाड़ू लगाना है, तो उन्होंने जो बड़ा हॉल था जहाँ पृथु प्रभु आने वाले थे, हमसे झाड़ू लगाया, सेवा कर, महत सेवया, ठीक है। और उसके बाद जब वो आए, मतलब उन्होंने कॉलेज में उधर भी कीर्तन कथा करते थे, तो उसमें कॉलेज इतना लिबरल था, गेस्ट हाउस में कॉलेज ने फैसिलिटी दी थी, आजकल कॉलेज तो हमको अदर कैटेगरी में डाल देता है, कोई कॉलेज ज़्यादा इनकरेज नहीं करता, लेकिन दिस वॉज वेरी नाइस। एंड उस सेवा करने के चक्कर में मेरे को याद है, हम झाड़ू वाड़ू लगाए, प्लेस क्लीन किया, वो आए, उनको रिसीव किया, बैठाए, जब वो कुछ बोल रहे थे, कथा ले रहे थे, इतने हम हंस रहे थे, क्योंकि महस सेवया, प्रभुपाद जी का शिष्य, आपने उसकी सेवा करी है, प्रभुपाद की सेवा हो गई, करेक्ट, और उसके आशीर्वाद की वजह से हृदय में आध्यात्मिक खुशी उत्पन्न होना शुरू, वो भक्ति की शुरुआत। भक्ति की शुरुआत लॉजिक रीज़न खाली मदद कर सकता है, लॉजिक रीज़न से आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, ना भगवान का सेवा का सुख प्राप्त कर सकते, है ना। अच्छा लॉजिक रीज़न ऐसा होगा जैसे आपने एक होता ना, खेती के पहले ज़मीन को रेडी किया, अच्छा ज़मीन रेडी कर दिया, बिकॉज अभी उसका मन रिवोल्ट नहीं करेगा, क्योंकि मन रिवोल्ट करता है, क्या है सब गलत है क्या बोलते हैं, ठीक है, उसका मन शांत हो जाता है अच्छे आपके आर्ग्यूमेंट से, लेकिन भक्ति उससे नहीं मिलती। मेरे 2-3 साल भक्ति नहीं मिली मेरे, अच्छे श्री श्री राधा गोविंद की जय, अच्छे लॉजिक आर्ग्यूमेंट से कुछ नहीं होता, श्री श्री गौर नेता है, शिल प्रभुपाद की जय, ठीक है। तो भक्ति कहाँ से उत्पन्न होती है, भक्ति की सेवा से, और हम वो चीज़ कभी नहीं मानते, बदमाश है हम सब, नहीं, हम बोलते एक उसका पॉइंट था, मेरा ये पॉइंट था उससे भक्ति नहीं शुरू होती, ठीक है। तो सैटिएशन, जैसे प्रभुपाद जी पहली बार भक्त संत प्रभु को मिले थे, उनको क्या चीज़ दिखी, कितना इनको चैतन्य महाप्रभु को सेवा करने का कितना इंटेंस डिज़ायर है ना। लॉजिक रीज़न था छोटा सा, प्रभुपाद जी ने बोला हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे फिर शुरू करेंगे ना आपका मूवमेंट वर्ल्ड वाइड, भक्त संत प्रभु ने बोला नहीं, उसका वेट करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, अर्जेंटली विश्व भर में भक्ति को डिस्ट्रीब्यूट करना है, हम इंडिपेंडेंस या कोई पॉलिटिकल सिचुएशन का वेट नहीं करेंगे, है ना। तो उन्होंने क्या चीज़ अनुभव करी, उनके हृदय में इंटेंस डिज़ायर। देखो भक्ति में वही फ़र्क है, एडवांस डिवोटी मतलब उसका भगवान का सेवा का डिज़ायर एडवांस होना चाहिए। एडवांस डिवोटी सफ़ेद बाल से नहीं, बुढ़ापे से नहीं, अपने इस्कॉन में साल से नहीं, ठीक है, ये चीज़ों से रेस्पेक्ट मिलता है। सोसाइटी में भी किसी का उम्र ज़्यादा होता है, लोग रेस्पेक्ट करते हैं, इस्कॉन में आते हैं, कितने साल उसको इस्कॉन में हो गए हैं, उससे भी उसका रेस्पेक्ट बढ़ता है, ठीक है। लेकिन असली रेस्पेक्ट तो रियलाइजेशन से होता है। आप एक्सटर्नली रेस्पेक्ट करोगे, लेकिन किसके पास आप शिक्षा के लिए जाओगे, जिसके आपको लगता है कि प्रभुपाद को सेवा करने का उसका डिज़ायर इंटेंस है, इंटेंस डिज़ायर, तो यही चाहिए, ठीक है। प्रभुपाद जी को पहले बताते थे कि हमने 10,000 गीता डिस्ट्रीब्यूट कर दी प्रभुपाद, कोई मंदिर ने, तो प्रभुपाद जी का मैसेज आता था डबल कर दो, डबल कर दो, मतलब कोई भी लिमिट नहीं है आप उनको कितना भगवान का सेवा करेंगे। तो भगवान की सेवा करने में एक चीज़ जरूर होती है, सैटिएशन नहीं होना,
हमको कैसे पता चलेगा हमारा सेवा प्रॉपरली हो रहा है? थकान नहीं लगती। जैसे जो ढंग से जप करते हैं वो थकते नहीं, उनको लगता है यार 7:30 बज गए और जप करना था मेरे को। उसका पता चलता है अब मैं स्पिरिचुअल उसमें जप कर रहा हूँ। टेस्ट बढ़ता रहता है, टेस्ट बढ़ता रहता है, छोड़ने का मन नहीं करता। तो पता चलता है अब मैं मेरा जब भगवान स्वीकार कर रहे हैं, आपको छोड़ने का मन नहीं करता। समझ रहे? आप भगवान के लिए भोग बना रहे हो, आपको रोकने का मन नहीं है, क्योंकि आपको खुशी हो रही है, आनंद हो रहा है। किसी भी सेवा को प्रॉपरली भी किया जा सकता है, उसको बोलते हैं अर्च विग्रह, और प्रॉब्लम के हिसाब से भी किया जाए उसको बोलते हैं गलग्रह। गलग्रह मतलब कोई दूसरा नहीं मिला था शायद, बोला आरती करनी है, इसको कोई दूसरा नहीं मिलता है क्या? इतने लोग हैं मेरे को ये प्रॉब्लम दे दी, उसको बोलते हैं गलग्रह। जैसे मध्वाचार्य या चैतन्य महाप्रभु भी, चैतन्य महाप्रभु रघुनाथ दास गोस्वामी को शालिग्राम शिला दिया। वो शालिग्राम शिला जो है, शालिग्राम शिला भगवान का ही रूप है। उसमें हमेशा, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु तो विरह में थे, हमेशा कृष्ण के विरह में रोते रहते थे, वो शालिग्राम शिला को पकड़ के रोते रहते, तो वो उनके आंसुओं से नहाई गई थी बहुत बारी। बहुत स्पेशल है वो शालिग्राम शिला। उन्होंने रघुनाथ दास गोस्वामी को दी, ठीक है। जब उनको दी तो उनको क्या सिर में आए, मर गए यार, मेरे को ये कोई और नहीं मिला था देने के लिए, अभी इतनी बारी इसको भोग लगाने का, इसके पूजा करने का, अभिषेक करने का, मर गए। इसको बोलते हैं गलग्रह, अगर ऐसा सोचेंगे, है ना। गलग्रह मतलब एक गले में नहीं होता 200 किलो कोई बांध के लगा दे, कोई दूसरा नहीं मिला था क्या? गलग्रह। एक होता है अर्च विग्रह। अर्च का विग्रह मतलब आपको सेवा में आनंद आ रहा है ना। तो इसी तरह भगवान का अर्चना सेवा नहीं, जैसे भगवान के लिए खाना बना रहे हैं तो दूसरा नहीं मिला, इतनी गर्मी में है, सब तो भगे खाते हैं मजे से, इधर नहीं। अगर हम ऐसा सोच रहे हैं तो अभी हमको सेवा का टेस्ट नहीं आया, और वो सेवा ज़्यादा चलेगी नहीं। आपको कैसे पता चलता है भगवान ने वो सेवा मेरे को दे दी, आनंद आ रहा है, आध्यात्मिक खुशी आ रही है ना। समझ आ रहे हैं? इंटरनल एनर्जी ने आपको स्वीकार कर, और आपको सेवा में खुश, हर दिन खुशी होता है। एक डिवोटी थे, उनका नाम था, जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी, बहुत रघुनाथ नाम है, उनका नाम था रघुनाथ। वो भगवान के लिए बहुत ही प्रेम से खाना बनाते थे। इतने अच्छे कुक थे कि राघवा झाली बोला जाता था। चैतन्य महाप्रभु चैतन्य चरितामृत पढ़ी आपने? जब मायापुर से भक्त लोग, नवद्वीप एरिया, सब लोग हर साल जगन्नाथपुरी आते थे, सब लोग नहीं, 300-400 लोग ले लीजिए, हर साल आते। तो जब आते थे राघवा झाली भी आती थी, एक मतलब बैग भर के खाने के लिए सामान, और इतना अच्छा एक एक चीज़ होता था, स्पेशल आइटम्स बना के, जो लंबे समय के लिए रहते ना, वो बना के चैतन्य बाबू के लिए बेचते थे। और जब भी वो भोग लगाते थे भगवान को, उसके बाद वितरण करते थे, चैतन्य महाप्रभु खुद उधर आके प्रकट हो जाते थे खाने के लिए। चैतन्य महाप्रभु कुछ जगह प्रकट होते थे। एक था सची माता, जब भोग लगे उनको खाना खिलाती थी, उधर प्रकट हो जाते थे, माँ देख नहीं पाती थी, इसलिए राघव, जहाँ नित्यानंद प्रभु डांस करते थे उधर ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो जाते थे। 3-4 जगह हमेशा प्रकट होते थे, कभी कभी दिखते थे, मोस्टली दिखते नहीं थे, ठीक है। एनीवे, तो राघव का नाम उसमें भी आता है जब ये आपका पानीहट्टी फेस्टिवल में भी बात करते हैं, और उनके यहाँ पे बहुत अच्छा खाना बनाता है, चैतन्य महाप्रभु तक खाते हैं। तो क्या कर रहे हैं, खाली खाना बना रहे हैं, लेकिन इतना अटेंटिव थे वो, और इतने प्यार से ऑफरिंग करते थे, जैसे कोकोनट का भी पानी अंदर भेजते थे, अंदर खाली होके आते थे। भगवान कभी कभी उनको इनकरेज करने के लिए पानी पी जाते थे पूरा, और कभी वो होता है ना आपका, वो कोकोनट का शेल होता है ना, आप काट के भेजते हो, उसको भी खा जाते थे, देख के उसको इनकरेज करने के लिए। तो ये सेवा में भगवान रिस्पॉन्ड करते हैं हमेशा, लेकिन उसके लिए सेवा भाव इंक्रीज होना चाहिए। तो अभी हमारे लेवल में प्रभुपाद जी बोलते हैं, अभी हमको डायरेक्ट इंटरेक्शन नहीं होता है, अभी हमको भगवान कृपा सेवा का सुख देता है।
इनिशियल स्टेज है डिवोशन सर्विस में, सेवा में आनंद मिलता है। भगवान का दर्शन वो ही है हमारे लिए। जैसे भगवत गीता में कृष्ण जी बोलते हैं, मेरे को देखना है अगर तुमको तो देखो ना, सूरज है। भगवत गीता में पूरा चैप्टर है। अभी मेरे को इस तरह देखो, सूरज है ना, हाँ ये मैं हूं। हिमालय दिख रहे हैं, हाँ ये मैं हूं। तो अब भगवान, ये शेर दिख रहा है, हाँ ये मैं हूं। क्यों बोल रहे हैं ऐसा भगवान? भगवान तो शेर नहीं है, हिमालय नहीं है, सूरज नहीं है। क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज उनकी सृष्टि से अभी उनको समझो। अभी आप डायरेक्टली भगवान को नहीं देख सकते, भगवान की सृष्टि से आप भगवान को स्वीकार कर सकते। अब जानी लोग वैसे ही स्वीकार करते हैं ना, कितना सुंदर सृष्टि भगवान ने बनाया, जरूर है। तो मेरे काम से मेरे को अभी समझो। तो इसीलिए भक्त में भी, सेवा में भी, अभी जो भगवान की सेवा का सुख है उससे आप भगवान को समझो। और उसमें अगर ढंग से सेवा कर रहे हो, कभी सैटिएशन नहीं होगा। मैं जो शुरू में जब करता था, बड़ा मुझ पर टाइम ही दिखता था, अरे यार कब खत्म होंगे, 7 कब बजेंगे, ऐसा लगता। लेकिन फिर धीरे धीरे टेस्ट आने लगा, लगता था यार 7 नहीं बजे तो अच्छा होगा ना, ये समय रोक दें। अगर जैसे गोपी कृष्ण के साथ डांस कर रही थी, उनको सैटिएशन नहीं हो रहा था, उन्होंने कृष्ण को रिक्वेस्ट किया कि थोड़ा रोको इसको। कृष्ण जी ने, शुद्ध भक्त हैं, रात रोक दी। वो तो समय को रोक सकते हैं, रात रोक दी, ब्रह्मा की रात बना दी। तो ब्रह्मा की रात कितनी बड़ी है? 4 बिलियन साल की। 4 बिलियन साल कृष्ण के साथ नाचते रहे, उसके बावजूद क्योंकि गोपियों का शरीर भौतिक नहीं था। अगर आप आधे 1 घंटे भी नाचोगे ना तो मर जाओगे। तो चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करके नाचते थे ना, कभी कभी वो 3-4 घंटे नाचते थे। तो नित्यानंद प्रभु भाग के उनको पकड़ लेते थे, अरे तुम्हारा तो आध्यात्मिक शरीर, ये मर जाएंगे लोग 3-4 घंटे नाचते नाचते। आप सोचो 3-4 घंटे नाचोगे नाचोगे, सारे हाथ पैर टूट जाएंगे। होता ना कभी कभी, बहुत अच्छा संकीर्तन होता है, आप भी कूदते हो, फिर जाके इतना दर्द होता है पैर में, है ना, बिकॉज भौतिक शरीर है। तो गोपियाँ कैसे डांस करी इतने टाइम तक? 4 बिलियन साल, करोड़ों अरबों साल तक नाचते रहे, क्योंकि गोपियाँ भौतिक शरीर में नहीं थी। उनका शरीर कैसा था? अलौकिक आध्यात्मिक शरीर था। समझ रहे ना? तो इसी तरह वो तो नहीं चाह रही थी बंद हो। इसी तरह मथुरा में भी कृष्ण जी के साथ 16,000 घर में 16,000 बीवी थी, और वो सूर्योदय के 3 घंटे पहले उठ जाते थे। सूर्योदय कितने बजे होता है? 6 बजे, 3 बजे उठ जाते थे। और जब उठते थे, साली 16,000 बीवी क्यों उठ रहे यार? वो चिड़िया ना, उधर अलार्म क्लॉक में चिड़िया की आवाज़ से पता चलता टाइम, है ना। एक चिड़िया की आवाज़, हाँ टाइम हो गया, इमीडिएट उठ जाते थे, और सब दुखी होते थे। कभी सैटिएशन नहीं होता। आप देख लो, सैटिएशन नहीं होता। जो भी महान भक्त होते हैं भगवान के सेवक, कभी सैटिएशन नहीं होता। तो हम भी अभी शुरू का जो स्टेज होता है, जब हम भक्ति शुरू करते हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, एक टेस्टिंग पीरियड होता है। उसमें भगवान सुख नहीं देते, आपको टेस्ट कर रहे हैं। उसमें आप पवित्र हो रहे हो। क्या हो रहे हो? अभी देखो, अभी की हमारी स्थिति है, हमको आध्यात्मिक आनंद का सुख की लहर नहीं आ रही, थोड़ा मिल रहा है। कब ऐसा होगा कि हमको गोस्वामी जैसे जोर के आध्यात्मिक आनंद आएगा। अभी शुद्धता का तो टाइम है। तो ध्यान से जप करते रहिए, गीता पढ़ते हैं, आनंद नहीं आता। अभी उसको एक साधना के रूप में करना पड़ता है। साधना भक्ति, रागानुगा भक्ति, अलग अलग भक्ति है। अभी हम साधना के स्टेज में। इस स्टेज में जब हम भगवान का सेवा करते हैं, कभी कभी जैसे नारद मुनि को आशीर्वाद दिया, बड़ा सुख मिलता है। कभी कभी एक भगवान सुख का झलक देते हैं। लेकिन ज़्यादा टाइम पीठ दर्द हो रही होती, पैर दर्द होती, कोई और दूसरा मिला नहीं, क्या आज कोई और आ जाता कितना ठीक होता, मैं थोड़ा लेट जाता। हम ऐसा ही सोचते हैं कोई भी भगवान की सेवा में। ठीक है, ऐसा ही चलता है। जैसे कॉलेज में होता है ना, अगर अनाउंस करो आज क्लास नहीं है, स्टूडेंट कितना खुश होता ना। तो आप समझ सकते हो उनको कोई स्वाद आ रहा है क्लास में? नहीं। अगर सुबह मैसेज मिला प्राइम मिनिस्टर मर गया या कोई प्रेसिडेंट मर गया और 15 दिन की छुट्टी, हमारे टाइम में होता ना, एक कुछ गोली लग गई थी और 15 दिन की छुट्टी, कितने खुश होते थे। हमको मतलब ही नहीं क्या हुआ, कौन मरा, बस, है ना। स्टूडेंट बच्चों लोग 15 दिन की छुट्टी, क्या 1 दिन की छुट्टी, कितना खुश होते हैं। दिल्ली में अगर जोर का बारिश हो जाए ऐसी जैसे मैंगलोर होती है, उस पूरा छुट्टी डिक्लेयर हो जाती है। ठीक है, तो क्यों? बिकॉज हमको उसमें स्वाद नहीं है ना।
तो हमारा भी अभी सुधी का अभी जो सिचुएशन है, साधना के रूप में, स्वाद नहीं है, लेकिन साधना के रूप में धीरे धीरे पवित्रता हो रही है, औषधि के रूप में। और जब हृदय पवित्र हो जाएगा तब आनंद अनुभव होने लगता है, तब सेवा में बहुत खुशी होता है। तब ये बोला ना, नो सैटिएशन, ये जो प्रभुपाद जी सब बोल रहे हैं महान भक्त की तरह, इसका अनुभव हम करेंगे। और प्रभुपाद जी को बार बार, मैं एक डिवोटी को बोल रहा था, जब भी हम प्रभुपाद को देखते हैं, प्रभुपाद के टाइम में भक्त प्रभुपाद को देखते थे, रोते थे ग्रैटिट्यूड से। क्या आचार्य, क्या आचार्य, क्या उनका प्रेम है, ऐसा लोग सोचते थे। तो हमको ऐसा क्यों नहीं होता? मैं सोचता था क्योंकि हमने अभी आध्यात्मिक सुख को अनुभव नहीं किया है। जब अनुभव करेंगे ना, तब आपको लगेगा कितना बड़ा हमको दान दिया है ना। अभी हम साधना से पवित्र हो रहे हैं, तो प्रभुपाद के हम ग्रेटफुल है नहीं ग्रेटफुल? सब लोग दिल से ग्रेटफुल है। हमको जो प्रभुपाद ने दिया कोई नहीं दिया, है ना। इसलिए तो बहुत लोग पूरा सब छोड़ छाड़ के प्रभुपाद को अपना ज़िंदगी दे देते हैं, क्योंकि ये एक चीज़ जो प्रभुपाद ने दी है, माँ बाप ने भी नहीं दी। उसके आगे जाके जब आपको आध्यात्मिक सुख अनुभव होगा, सोचेंगे क्या गिफ्ट दी। अभी हमको मेन गिफ्ट का पूरा वो नहीं मिला है, रिजल्ट नहीं मिला, मिलेगा साधना करते करते मिलेगा। देन वी विल बी सो ग्रेटफुल, सो वंडरफुल थिंग प्रभुपाद हैज गिवन अस। ओके, एंड नो सैटिएशन। हरे कृष्णा, थैंक यू। ठीक है, आवाज क्लियर है ना अभी तो? हरे कृष्णा एवरीबॉडी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कृष्णा प्रणाम। कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी, सदा सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। राधे राधे हरे हरे राम, हरे राम, राम राम, राधे राधे हरे कृष्णा। तो जपा करते रहिए सब लोग। पंचतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च प्रतितानां ठीक है। पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री राधा रानी की जय। हरे कृष्णा हरे कृष्णा Thank प्रभु you. जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा, राम हरे कृष्णा राम प्रभु जी, राम दंडवत हरे प्रणाम। हरे हरे करते कृष्णा रहिए। हरि बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी। सॉरी प्रभु जी, आपके मतलब मैं बस अब बोल जाती। बैंगलोर के टिकट खरीद लो, मिलेंगे नहीं। प्लीज सभी लोग सुनिए, प्रभु जी कुछ कह रहे हैं। हम बोल रहे हैं कि माय टेम्पल इनॉग्रेशन के लिए टिकट खरीद लो, टिकट नहीं मिलेंगे फिर, ठीक है, फिर महंगे हो जाएंगे फ्लाइट के, और आपके ट्रेन के टिकट में वेटिंग लिस्ट शुरू हो जाएगा। जल्दी ले लीजिए जिस चीज़ को आना है। मैं तो सोचा हिंदी डिपार्टमेंट से एटलीस्ट 500 लोग आएंगे, सबसे बड़ा डिपार्टमेंट है। क्लास में भी ऐसे ही आते हैं, मैं सोचता एटलीस्ट 500 लोग आएंगे। हिंदी का क्लास में नहीं ली, इंग्लिश में 100 के ऊपर आते हैं, मैं तो हिंदी लूँगा तो 500 के ऊपर आएंगे। सबसे बड़ा, सारे लैंग्वेज के स्टूडेंट मिला के उतने स्टूडेंट हिंदी में होते हैं रजिस्ट्रेशन में। चलो, हरे कृष्णा, थैंक यू एवरीबॉडी।